सो नेक्स्ट इज बेटा मैच द फॉलोइंग। मैच करना है फॉलोइंग को। सो लैक्टिक एसिड इज वी हैव डिस्कस्ड इन द फिलिंग द ब्लैंक्स मसल्स क्रैम्प्स। जो लैक्टिक एसिड्स है वो क्रिएट करता है मसल्स क्रैम्प्स और दैट इज ड्यू टू anaerobic respiration. This is for your knowledge only. So the answer is lactic acid to muscle cramps. Then stomata. Stomata are for transpiration. Stomata किस में हेल्प करते हैं? for transpiration. Then beta respiratory carrier, that is hemoglobin. This is the filling the blanks also. Then lenticels, these are present in the plants for respiration. Somatic pores on branches, these are for respiration in plants. Then a beta alcohol, and alcohol is responsible for fermentation of the yeast. yeast की fermentation के लिए responsible है. Then tick the correct option. respiration helps in, respiration किस में हेल्प करता है? ऑब्टेनिंग एनर्जी, एनर्जी को ऑब्टेन करने में. देन है बेटा स्टोमेटा, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ. स्टोमेटा किस में प्रेजेंट होते हैं? इन द प्लांट्स एंड दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस को एक्सचेंज करने में. देन है बेटा द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. ग्लूकोज in the presence of oxygen they will form carbon dioxide plus water plus energy. So this process is glucose ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस कर रही है ऑक्सीडेशन. इट मीन्स इट occurs in aerobic respiration. इन एनिमल्स में होती है ये. टू सर्वाइव प्लांट रूट्स नीड, सर्वाइव करने के लिए जो प्लांट रूट्स है उन्हें किसकी ज़रूरत है? ऑफ द ऑक्सीजन. क्योंकि बेटा जो रूट्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द सोइल और सोइल के अंदर प्रेजेंट होने की वजह से दे रिक्वायर द ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. देन अर्थवॉर्म और लीचीज जो है वो रेस्पायर करती हैं थ्रू देयर स्किन. क्योंकि ना उनमें लंग्स होते हैं, ना गिल्स होते हैं, ना ही ट्रैकिया. ट्रैकिया और लंग्स प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ एनिमल्स. सो दैट इज स्किन. ओके बेटा, once more I am going to repeat. Lactic acid is produced during anaerobic respiration. Insects have organs called the trachea. Then the taking in of air rich in oxygen is called inhalation. Adult human being normally breathe from 14 to 20 times per minute. The movement of lungs is controlled by the rib cage and the diaphragm. Dash act as a respiratory carrier, that is hemoglobin. Then match the following है बेटा. lactic acid muscles cramps, stomata transpiration, respiratory carrier hemoglobin, lenticels pores on branches, alcohol fermentation of yeast. Then tick the correct बेटा. जो रेस्पिरेशन है वो किस में हेल्प करता है? एनर्जी को ऑब्टेन करने में. लोकोमोशन है, एब्जॉर्प्शन है, डाइजेशन है. दीज आर एक्टिविटीज़ विच अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनर्जी. अगर एनर्जी ही नहीं होगी तो ये दीज एक्टिविटीज़ विल नॉट बी परफॉर्म्ड. देन बेटा स्टोमेटा, ये जो स्टोमेटा होते हैं ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल, मूवमेंट ऑफ फूड, दीज आर डन बाय द टिश्यूज़. ये टिश्यूज़ करते हैं और आपको पता है दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. देन द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल. फोटोसिंथेसिस में आपको पता है वो क्या लेगा? CO2. तो ये नहीं है. फर्मेंटेशन में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल बनना है. एंड ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर. टू सर्वाइव प्लांट रूट्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन. बिकॉज सनलाइट मिट्टी के ऊपर होती है, अंदर नहीं होती. कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लीव्स को चाहिए.
chlorophyll present in the leaves, so only the thing is oxygen. Earthworm किससे सांस लेते हैं? लीचेज स्किन, बिकॉज बेटा इन तीनों में से उनके पास कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता. So this is your book exercise. Now we will continue our short question answer. Short question. So let's start beta our first question. Define respiration. Name the types of respiration. So beta you have to define the respiration and also write the types of respiration. Respiration means conversion of sugars into biochemical energy is called respiration. Okay beta, respiration is of two types. Aerobic respiration and the second one is beta anaerobic respiration. Okay, the first is aerobic and the second is anaerobic respiration. So next is beta question number 2. Name the respiratory organ of the following. Okay beta, you have to tell the name of the respiratory organ. कौन सा organ किस में यूज़ किया जाता है for respiration? First is crab. Crab में which is used for respiration? That is gills beta, because जो crab है that lives in water. Second is beta man, human being. So हमारे अंदर क्या हम यूज़ करते हैं? That is lungs. ओके बच्चे, देन बेटा हमारे पास हैं लीचीज. leech, and these are also from skin. You have read in the fill in the blanks also.
Okay beta, the next is insect. So that is beta from trachea. Okay, so this is your second question. So the third one is beta, find रेस्पिरेशन को डिफाइन करो. सो द आंसर इज बेटा, आंसर इज लॉस ऑफ एक्सेस water from plants through open stomata. ओके, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर का प्लांट से बाहर निकलता थ्रू द ओपन स्टोमेट, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द टर्म ब्रीदिंग रेट. आपको डिफाइन करना है द टर्म ब्रीदिंग रेट. ब्रीदिंग रेट का मतलब होता है बेटा, आप 1 मिनट में कितनी बार अंदर बाहर लेकर जाते हो एयर को. ओके, सो नंबर ऑफ टाइम्स a person breathes per minute is called breathing रेट. एक पर्सन 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर और बाहर लेकर जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट. क्वेश्चन नंबर 5 इज बेटा, नेम द बॉडी ऑर्गन, नेम द organs which help lungs during the process of ब्रीदिंग. ओके बेटा, उस ऑर्गन का नाम बताओ जो हेल्प करता है लंग्स की ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीथ करते हुए लंग्स के साथ साथ. सो द आंसर इज रिब केज एंड डायफ्राम helps lungs
during the process of breathing. Okay बेटा, so rib cage and diaphragm diaphragm help करते during the process of breathing. It is the filling the blanks also. So the next question is beta, question number 6. Why do we need to breathe out carbon डाइऑक्साइड? हमें कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करने की ज़रूरत क्यों है? देखो क्यों है बेटा, देखो अगर हम इसे ब्रीद आउट नहीं करेंगे तो ये हमारी बॉडी में क्या होगी, एक्यूमुलेट, और एक्यूमुलेट होना ये पॉइजनस है हमारी बॉडी के लिए. सो हाई लेवल of carbon dioxide in the body can be toxic. High level of carbon dioxide in the body can be टॉक्सिक हो सकती है. सो हैंस या यू कैन से सो इट नीड्स टू बी ब्रीद आउट. इसीलिए इसको बाहर निकालना जरूर. ओके बेटा, so these are your short question answer which is completed now.